use mic because मैंने बोला बुलंद आवाज है, चलेगा? आवाज आ रही है? लास्ट तक। Let me introduce myself. I used to actually teach only. Right? My background is teaching, and I was acting, working as a faculty in one of the premier institutes. You might have heard of MIT, Vilvokia. I've served those institutions in the past, right? So, belonging to a teaching fraternity, I always had, this kind of urge and this kind of, liking always that I should always, give back whatever I have learned, whatever exposure I have got from that industry. So that is why I readily accepted when Dr. Vikas called me for this session. So this is a kind of, giving back to the student community. So, and especially those who are not willing to stay in the box. Right? How many of you understood what I mean to say by staying in the box? rather than going alone and working something there for ourselves or someone else. Let's clap for this individual who at least had the courage of, ये चाहिए मुझे थोड़ा सा स्पेशल थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे, लेकिन नहीं तो मैं तो सो जाऊंगा यार, ठीक है? मैं otherwise I don't like to speak much. I like to listen more. Right? So ये थोड़ा सा एक आपको लगेगा कि यार ये तो बोलने के लिए बुलाया और ये कह रहा है कि ये बोलना नहीं चाहता और सुनना चाहता है। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि एक इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे, ठीक है? जिससे कि मैं भी जान पाऊँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ से, राइट? एक टर्न लिया, वो टर्न तब लिया जब मैं 2018 में 2018 when I was teaching in an institute and the course in which I was teaching got closed. Sometimes what happens, you might have decided something about yourself, you might have planned something in life, but eventually what happens? God has some other plans for you, right? And that is how this journey began, of exploring myself. Earlier, I'm very, I'm being very, very honest and telling you frankly that how I turned into an entrepreneur. Actually, I was in total comfort zone, right? I was in total comfort zone. Teaching my subjects, doing whatever task has been assigned to me, whatever duties were actually expected of me, I was doing everything. And in total comfort zone. But then God decided that you're not made for this. This is half of your life. And can you imagine the fate of an individual who lost his job after 17 years of his dedicated career in which whatever was expected, he performed that. Whatever degree he was expected to acquire, he acquired that. Can you imagine the fate? What would have happened? You tell me, what are the options? If something like this happens to you one fine day in your life, what are the options you have? Anyone who can volunteer and tell me what are the options? And from these options, आप बताएं कुछ options दिमाग में आए कि ऐसा कुछ हो तो क्या options है, क्या होगा? अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए, maybe not in teaching sector, corporate sector
17-18 साल बाद ऐसा कुछ हो जाए, राइट, उसको पिंक स्लिप मिल जाए, तो क्या करेगा वो? क्या ऑप्शन है उसके बाद बताओ? फाइंड द अदर वन, यस, वेरी गुड ऑप्शन. फाइंड द अदर जॉब, वेरी गुड ऑप्शन. और व्हाट आर द ऑप्शंस? For other potential jobs that align with your skill set. Excellent. Almost same. So, starting his own business. That's good. Good. And if he is not having any background as such, any piece of knowledge to start with, then exactly. Very nice. Excellent. I am looking for people like this. Who all vote for this guy? And just raise your hand. Who all vote for this guy? This guy is telling me that we have an option to start our own business. So how many of you are willing to start your own business and vote for this particular own agency, own business? Yes. So we have to look after various factors. Like I lost my job, I don't have any financial backup for the last 6 months, then we have to look after that. If we are not able to maintain our basic lifestyle, then how can we start? आप लोगों ने में से किसने एक वर्ड सुना है? बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया. आई लाइक योर रिप्लाई बिकॉज इट इज अ थॉटफुल रिप्लाई एक्चुअली. Starting our own business, but there are a lot of challenges, lot of factors to look after. Like, what about the expenses which are already, in line, and whatever hidden cost or maybe the expenditure which we have to incur. Any which way होगा ही होगा, उस खर्चे का क्या करेंगे? Yes, and increase your risk level also. There is a term called delayed gratification. How many of you have practiced that? I told you that we will arrive at one of the ingredients to become an entrepreneur. Who has come across this term, delayed gratification? Yes. ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो मैं अपनी स्टोरी को एक्सटेंड करते हुए बताता हूँ डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है. When I came across this situation, what I did was I sold my house. Right? Why? Because I had a loan on that house. I wanted zero liability first. Zero liability. Irrespective of whatever I have to do. Even if I have to shift to a smaller house, I was ready for that. Even if I don't have car for the next 1 or 2 years, I'm ready for that. Even if my kid studies in an average school for the next 1 or 2 years, I'm ready for that. Right? Even if I don't wear new clothes every day, I was ready for that. This is called delayed gratification. Spending your next 1 or 2 years as a beggar and spending rest of your life as a person, fulfilling all his dreams and spending rest of your life like nobody could ever think of, could ever imagine. Because you have spent the first 2 or 3 years maybe 1 or 2 years, that depends how struggling is your journey. Right? So this is what happened. And people around me were not very supportive. Do you really think they supported me? No. They told me, मकान मिलता कोई जिस मकान में तुम रह रहे हो जो इतनी मेहनत से सींचा है और पहले सुनते हो वो मकान मिल गया. So मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये सब चीजें?
मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप सबके दिमाग में है, बट यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर द challenges which will definitely come across and you have to fight it out. करना पड़ेगा उसको। जो लोग भी बिजनेसेस में जाना चाहते हैं आगे, अगर उनका ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है then it is an altogether different story, but someone who wants to start his own venture, startup, उसके लिए बता रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है delayed gratification, और सब कुछ बोल जाना delayed gratification क्या वो करना पड़ेगा। कर सकते हैं जितने लोग जिन्होंने हाथ उठाया था वो बताओ कर सकते हैं, कर सकते हैं। आइडिया को लेकर हाँ हाँ रिस्क ज़्यादा है, यू नो अगर मैं आपको बताऊं तो आप हंसोगे। आपने सेक्टर 17 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, नहीं सेक्टर 17 में आईटी यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग कॉलेज है, हाँ बीपीआईटी सुना है सबने, भगवान पर When I decided not to go for another job or not to apply anywhere, you know, there were days when I parked my van right in front of BPIT and sold rajma chawal and kadhi chawal. Do you have this courage? Just because I had a kind of familiarity with the students. Okay? So there were days when I used to do two different assignments. One is exploring my venture, how far it goes, because initially you don't have money, and to satisfy my running expenditure, I stood right in front of that college. So this is how the story continues. You know, it was year 2018 and 19. I spent almost 8 to 10 months there, selling those rajma chawal and kadhi chawal, and building relationship with the students, trying to see, trying to explore, you know, whether I can do whatever it takes to become an entrepreneur, whether I can do or not. Those were the hardships. लेकिन जॉब नहीं कर रहा था, समझ में आया आपको? कुछ भी करना था अपना करना था, लेकिन जॉब नहीं कर रहा था। तो मैं सुबह के टाइम में ये करता था, फिर करीबन दोपहर के आसपास जब थोड़ा सा वो ऑडियंस कम हो जाता था वहाँ पे, या वो जो पब्लिक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो कम हो जाते थे, जाने लग जाते थे, फिर मैं अपने ऑफिस चला जाता था और वही वेंचर जो मैं प्लान कर रहा था उसको एक्सप्लोर करता था। You know, after 2 years of struggle, we eventually came up with an idea. 2 years of struggle for getting the idea. You know, I explored a lot of ideas. उसके बाद वो आइडिया आया जिसने एक्चुअली मेरे एस्टेब्लिश्ड ब्रांड बनाया जो आज हम लोग रिएक्ट ग्लोबल सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं। और वो मेरा ब्रांड था, और मैं आपको बताऊं मैंने अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दी थी, एंड आई वेंट टू मुंबई फॉर फेचिंग न्यू क्लाइंट्स। एंड व्हाट दिस कंपनी डज इनिशियली टू बिगिन विद, हम लोगों के पास एक आइडिया आया कि बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को और कॉर्पोरेट्स को, इनको स्टाफ चाहिए होता है, मैन पावर सप्लाई करना, ठीक है? क्यों चाहिए होता है? बिकॉज ऑफ देयर आर लॉट ऑफ आउटसोर्स्ड जॉब्स व्हिच दे वुड लाइक टू कंप्लीट विद इन a time limit, right? There is a deadline also that associated with that always, right? For example, somebody has taken a loan, somebody is into import export, right? So if someone is into import export, then that person has to get his premises verified, checked properly. So I thought of building a network all across India so that I can serve these financial institutions for their financial audit and their verification jobs.
This is the idea which, and there are, see, idea doesn't mean that it is always a new idea. क्या प्रॉब्लम्स देखते हो, क्या ऑब्जर्वेशन में रहते हो, इम्पोर्टेंट है ये भी. Are you running an observatory through your eyes always? Right? If in your struggling days, if you are always observing whatever is happening around you, that is the ingredient, one of the major ingredient of becoming an entrepreneur. Just try to go deeper inside you and see whether you are an observer, keen observer. बहुत जरूरी है. आप अपने अराउंड प्रॉब्लम्स देखते हो और प्रॉब्लम्स का ही जिक्र करते हो या सॉल्यूशंस का जिक्र करते हो? बिकॉज सी इनिशियली स्लाइड तो मेरा चल जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन इनिशियली आई वांट टू टॉक अबाउट द माइंडसेट. Because I am a person standing in front of you who completely changed his mindset. पहले काम माइंडसेट पे करना है. पहला काम माइंडसेट पे करना है. तो मैंने आपको क्या बोला, एक तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन चाहिए, दूसरा क्या बोला मैंने, माइंडसेट, कीन ऑब्जर्वेशन. आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको ऐसी लगती है कि यार ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ और इसका सॉल्यूशन मेरे को मिल सकता है. If I devote some 1 or 2 years maybe, इसका सॉल्यूशन मुझे मिल सकता है, I can work on it. So वो प्रॉब्लम आपके लिए ऐसी बन जानी चाहिए जैसे उससे शादी हो गई भाई, ठीक है, ऐसे हो जाना चाहिए. आप लोग काफी इमेच्योर हो वैसे इस तरह की बात करने के लिए, लेकिन ये मान लो कि उससे हमारी शादी हो गई. सो पहला निकाह उससे पहले ये वाला निकाह, ठीक है, ये करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, लेकिन मेरा वो दूसरा निकाह था, ठीक है. सो अगर आपने उसके साथ वो बॉन्डेज नहीं बनाई, अगर आपने उस सोल्यूशन के साथ या उस प्रॉब्लम के साथ वो बॉन्डेज नहीं बनाई, तो ज़्यादा दिन तक चिपके नहीं रहेगा. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसके साथ वो बॉन्डेज, वो रिलेशनशिप्स होते जाते, वो चीज़ याद आनी चाहिए. कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. सो एंड कंटिन्यू करता हूँ स्टोरी. बॉम्बे वाली विजिट में ना हमारे 2 क्लाइंट्स आए थे शुरू में, सिर्फ 2, एंड वी मस्ट हैव मेट अराउंड 15-16 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. हेड ऑफिस वही है ना, क्या करें. तो हेड ऑफिस में गए, 15-16 को मिले तो 2 मिले. इससे एक और बात समझना, ये लॉ नो एवरेजेस, लॉ ऑफ एवरेजेस ये काम करता है. लॉ ऑफ एवरेजेस काम करता है. आप लोग सेल्स एंड मार्केटिंग पढ़ रहे होंगे, तो जब आप सेल्स करने जाते हो या अपने आप को बेचने जाते हो, पेश करने जाते हो, तो क्या चीज कांस्टेंट है, क्या चीज कांस्टेंट है? वो कांस्टेंट है 10 में से 2 लोगों का कन्वर्जन. पक्का वो 2 कौन से होंगे पता नहीं, लेकिन 10 लोगों से बात करना और आप अपनी स्किल्स को और रिफाइन करना, ये करते हो और 2 लोग कन्वर्ट होते हैं. पक्का है वो 2 कौन से पता नहीं, 100 लोगों से बात करोगे 20 लोग कन्वर्ट होते हैं, ये पक्का. तो मुझे लॉ ऑफ एवरेजेस पता था, है ना. हमारी थोड़ी बैड रेशियो थी, इतना अच्छा नहीं था शुरू में, 16 में से 2 ही हुए थे, ठीक है. बट 2 होते, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, फिर हम शुरू में उस काम को करना. इनिशियली थोड़ा सा बोस्टफुल भी होना पड़ता है, बताते हैं कि हाँ यार आपके पास वेंडर्स और फील्ड का स्टाफ चाहिए इस काम को करने के लिए, क्योंकि आप होस्ट कर रहे हो, आप ऑल ओवर इंडिया सपोर्ट दोगे, ठीक है. ऑल ओवर इंडिया अगर आप सपोर्ट दोगे तो आपके पास एक बड़ा नेटवर्क चाहिए, एक कम्युनिटी चाहिए, और वो नेटवर्क बना हुआ नहीं था. क्या करेंगे शुरू में, थोड़ा सा होस्ट करेंगे, फेक इट अंटिल यू मेक इट. तो मैं आपको ना ये जो थ्योरेटिकल चीजें हैं ना, ये अपनी लाइफ से रिलेट करके बता रहा हूँ. हमने भी फेक किया यार, फेक इट अंटिल यू मेक इट. बट जब आप फेक कर रहे हो तो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस कितना है आपके अंदर, वो देख लो. फेक तो करना है,
बट एटलीस्ट कुछ बेस होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ बेस होना चाहिए। तो हमारे पास कुछ ऐसे बेसिस थे जो मैं यहाँ से लेके गया था। हमने कुछ जॉब पोर्टल्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट डाल रखी थी अपनी कंपनी की, और हमने कुछ रिक्रूटमेंट का भी रखा था, और कुछ हमारे पास POCs थे, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर हमने फिर किया और चला, तो 2 क्लाइंट्स मिले, उन 2 क्लाइंट से जर्नी शुरू हुई, और वो जर्नी उस 2020 से लेके आज 2024 तक, वो 2 क्लाइंट्स आज टोटल मिला के 20 क्लाइंट्स में तब्दील हो चुके हैं, राइट। वो कैसे हुआ? पिछला काम दिखा के अगला काम पकड़ो, सिंपल है। जब एक बार आपको एक सिरा मिल जाता है, एक सिरा, you are able to catch that, right? Now next step is to keep on progressing by showing your work and impressing more potential clients. यही काम है। बट वो पहली बार वो सिरा मिलना इम्पोर्टेंट है, राइट? So आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं? The real meaning of manifest. Yeah, I am a firm believer of manifestation. Not only visualization, manifestation. करते हो? कैसे करते हो? कुछ थोड़ा सा बताओ। मैं ये नहीं कहता मैनिफेस्ट करो यहाँ पे, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। कैसे करते हो? आइडियाज को देखो, मैं आइडियाज की मैनिफेस्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किस चीज की मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा हूँ पता है? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड ऑफ बिलीव, कंसीव एंड अचीव साइकिल, लाइफ साइकिल के बारे में? मैं इसे कितनी देर बोलूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। बिलीव, कंसीव एंड अचीव, दिस इज अ साइकिल। बढ़ता रहता है, अपने अंदर भी और अपने दूर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। Can you be a little bit louder so that everyone listens to you and pays attention? When we keep manifesting a thing, उसके बाद हमें उसके ऊपर बिलीव बढ़ता रहता है, अपने आइडियाज के ऊपर या और अपने गोल्स के ऊपर। उसके बाद हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं एंड एट दैट वो अचीव हो जाता है। गाइस कीप मैनिफेस्टिंग काम करता है, सराउंडिंग सुनता है। यार एक ना मैंने किसी से सुना था, एक छोटा बच्चा देखोगे ना, छोटा बच्चा जो अगर किसी मॉल में किसी टॉय शॉप में एंटर किया है और आपसे वो टॉय मांग रहा है जो उसको चाहिए, ठीक है, समझना ध्यान से कि क्यों बता रहा हूँ। वो टॉय उसको चाहिए और आप चाह रहे हो उसको कन्विंस करना कि भाई तू अभी मत ले, थोड़ा वेट कर ले, मैं तेरे को मे बी, क्योंकि आपका पॉकेट का थोड़ा सा हिला हुआ है, क्योंकि 25 तारीख है, ठीक है, तो 25 तारीख है, तो इसलिए थोड़ा सा हिसाब किताब लिखा हुआ है। आप उसको कन्विंस कर रहे हो ना कि भाई ये जो है तो कल, सॉरी अगले महीने ले लो, 1 तारीख को मैं अमीर हो जाऊँगा। जैसे होता भी है जनरली जॉब में 1 तारीख को अमीर हो जाते हैं सब, और 20 तक आते आते फिर दोबारा भैया आ जाता है, ठीक है। सो वो कहते हैं भाई मुझे तो चाहिए, वो 2-3 बार चाहिए बोलता है, उसके बाद तो लेट जाता है, वो पूरा लेट जाता है मिट्टी में, पूरा एकदम अपने आप को, और फिर वो क्या करता है, वो चीखे मारने लगता है ताकि he is able to catch the attention of the audience, वो भी उसको सुन रहा है वहाँ पे closely। और फिर वो क्या होता है, जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो माँ बाप को पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, देखो ये अपने बच्चे को रुला रहे हैं यहाँ पे, ये बच्चा इतना रो रहा है, उसको लेके नहीं दे पा रहे। मैं होता ना, चाहे अगर इसका बच्चा रोएगा ना, वो ना लेके देगा, लेकिन मैं होता ना तो मैं तो लेके देता, वहाँ पे अपना पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, माँ बाप की होती है बेइज्जती, और फिर वो बच्चा इवेंचुअली अपने
टारगेट में अचीव हो जाता है, कर लेते ना अचीव, और वो फुल वाइफ को मिलता है। हाँ, थप्पड़ भी मार देते हैं, ये भी हमने देखा है, लेकिन थप्पड़ मारने के बाद भी वो कहता है कि मेरे को तो चाहिए। वो है यार, वो जिद्दी है, वो जिद्दी है बच्चा, वो कह रहा मुझे चाहिए ही चाहिए। अच्छा, दो चीजों में फर्क क्या होता है? एक तो होता है मुझे चाहिए, और दूसरा होता है चाहिए ही चाहिए। ये दोनों में क्या फर्क है? जिद का फर्क है। ये जो चाहिए ही चाहिए है ना, ये थप्पड़ खाने के बाद भी चाहिए, और जो चाहिए है ना, वो थप्पड़ खाने के पहले चाहिए। बाकी कोई बात नहीं पापा, ये वाले दो एटीट्यूड। क्या आप अपने पैशन को लेके, अपने उस कॉन्सेप्ट को लेके, अपने उस आइडिया को लेके, क्या आप इतने जिद्दी बन सकते हो कि जब आप बोलो भगवान को कि मुझे चाहिए ही चाहिए? मे बी आइडिया नहीं, जो गोल्स आपने अपने लिए डिसाइड किए हैं, मे बी आपके कुछ ऐसे मैनिफेस्ट करके कुछ निकले होंगे ऐसे गोल्स किया, ये चाहिए मुझे लाइफ में। ऐसा जरूरी नहीं है वो मटेरियलिस्टिक गोल हो यार, वो ऐसा भी गोल हो सकता है कि फैमिली के साथ मुझे ज्यादा टाइम चाहिए। भाई मैं जॉब में बहुत पहुंचता हूँ, ठीक है, मुझे बच्चों के साथ खेलने वाला टाइम चाहिए, ठीक है, मुझे मैक्सिमम टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेंड करना, या गर्लफ्रेंड हो गई बॉयफ्रेंड के साथ स्पेंड करना, ठीक है। और अभी वो बहुत सारे ऑक्यूपाइड है, सारे के सारे जॉब्स में या अपने स्टडीज में नहीं कर पा रहे। मुझे ट्रैवलिंग करनी है, मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमना है यार, तो वो पूरी होगी। अगर सिर्फ चाहिए ना तो नहीं पूरी होगी। एक्चुअली वो जो ऊपर वाला है भगवान, वो ये देख रहा है कि यार ये जिद्दी कितना है, पहले इसको देखो सही, मान किस तरीके से सकता है, इसका एटीट्यूड मांगने वाला है कैसा। अगर इसका एटीट्यूड मांगने वाला ऐसा है कि इसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वही करेगा, लेट जाएगा और ये फिर तांडव मचाना शुरू कर देगा, ठीक है। और मेरे बारे में लोग क्या सोचे, भगवान जब ये सोचने लग जाए कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस बेचारे बच्चे की ना मांग पूरी नहीं किया, जब ये आलम आ जाएगा तब आपकी जिद पूरी कर देगा, ठीक है। सो क्या आप इतने जिद्दी हैं अपने मैनिफेस्टेशन को लेके, अपने गोल्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके? आपको एक स्टोरी, एक छोटी सी किताब में पढ़ी थी ऐसे। देयर वाज अ स्टडी कंडक्टेड इन ऑक्सफोर्ड। पता है किसी को उस स्टडी के बारे में? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी किया गया। टोटल जितनी क्लास थी, जैसे आप लोग एक क्लास है, एक बैच है आपका, ठीक है, टोटल जितने भी स्टूडेंट्स उस बैच में थे उन सब ने स्टडी किया। वो स्टडी क्या था? वो स्टडी था कि उनसे यही क्वेश्चन पूछा गया, डू यू मैनिफेस्ट? तो उन्होंने कहा हाँ जी, सभी बोले कि हाँ करते हैं कुछ कुछ अपने अपने लेवल में। उसके बाद उनसे कहा गया कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन गोल्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव डिक्लेयर्ड दोज गोल्स इन पब्लिक? हाउ मेनी ऑफ यू? सॉरी फॉर नॉट रनिंग थ्रू द स्लाइड्स। ये ठीक है? मैं बोलूँ तो इसको भी कर लेंगे, लेकिन क्या ये ठीक लग रहा है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ? यार एक बात बताओ, वो जो उसने पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन गोल्स, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? गोल्स और ये जो दूसरी बात बोली उसने, पब्लिक को सुनाया कि नहीं? तुम्हें पता है, जब बड़ी हंसी की बात है, जब सारे के सारे मुझे बोल रहे थे ना कि ये क्या किया तुमने, मकान बेच दिया, गाड़ी बेच दी, अब स्मॉलर हाउस, स्मॉलर कार और मे बी नो कार फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, तो ये क्या मतलब जिंदगी में क्या करना है? चुपचाप जॉब अप्लाई कर, तेरे को 17 साल के एक्सपीरियंस में 20,000 रुपये नौकरी मिल जाएगी, 1 महीने की ऊपर 20,000 कम से मिल जाती है आराम से। अप्लाई करना तो किसी और यूनिवर्सिटी में लगा था, जो भी मिल रहा था एक्स अमाउंट प्लस 20,000 पर मंथ हो जाता। सब लोगों ने ये बोला, ठीक है।
जब वो ये बोल रहे थे तो उस टाइम का कंडीशन खराब थी, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि नहीं ठीक कह रहे आप, बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ऐसे तो नहीं कह सकता। वो तो ठीक ही कह रहे थे उस टाइम के हिसाब से, बिल्कुल सही कह रहे थे। मेरी कंडीशन दोबारा से स्मूथ हो जाती और मैं एक्सपेंसेस आराम से अपने चला लेता, कोई मकान में रहता, उसी घर में रहता और अपने गाड़ी में चलाता, बच्चों की चीज सब बढ़िया चलता, सब बढ़िया होता। लेकिन मैंने पता क्या जवाब दिया, मैंने उनको बोला let me decide the fate of my life. I will move in a bungalow in the next 4 years. That's it. I've given myself only 4 years. A bigger car and maybe one car for each member of my family. That is what I've decided. I travel around the world. ये मैंने उनको बोला वहाँ डिक्लेयर किया, पता क्यों डिक्लेयर किया? क्योंकि I always believe in not achieving the goals first announcing in public. पता क्या होता है उससे? वो प्रिंट करते रहते हैं, कहाँ गई तेरी गाड़ी? कहाँ है बदला? कौन सी कंट्री में जा रहे हो? ठीक है? और जब वो ये करते हैं ना, तो अंदर चुभन होती है। और वही तो चाहिए यार, वही आग तो चाहिए, वही चाहिए एक्चुअली में। वो प्रिंट करना अच्छा नहीं लगता है यार, अच्छा नहीं लगता है। ये मत सोचना कि सब कुछ अच्छा अच्छा बोली होगा। ये तो यू विल एक्चुअली लर्न द हार्ड वे। जो आपने जो भी एजुकेशन में सीखा होगा, जो भी एकेडमिक्स में पढ़ा होगा, जो भी यहाँ का कल्चर है, मतलब एक रिस्पेक्ट हो, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं टीचर से, आप टीचर्स को देते हो। बट यार ये वाली जो लाइन है ना, ये ऐसी है नहीं, इसमें एक्चुअली आपको ना बार बार वो इंजेक्शन लगते रहेंगे। आपको बस अपना जो वो ड्रीम सब हुआ है उसको करने नहीं देना, ठीक है? उसको बुलंद रखना है हमेशा। सो कहाँ थे हम? हाँ, तो मैंने वो अनाउंस करना शुरू कर दिया हर जगह। मैंने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिया, मैं पागल हो गया था इनफैक्ट अपने ड्रीम को लेके, मैनिफेस्टेशन को लेके। और मैं उसके ना उस ऑक्सफोर्ड की स्टडी में बिलीव करता हूँ। वहाँ पे सिर्फ 3 लड़कों ने या 3 स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा किया जो ये कहते थे कि हम अनाउंस करते थे पब्लिकली, ठीक है? और करीबन 15 से 16 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो जिनके पास वो रिटर्न में नहीं था बट उनके दिमाग में था, और बाकी सारे विदाउट गोल्स चल रहे थे, ठीक है? जिनके पास गोल्स अभी थे नहीं, उन्होंने सोचा नहीं था क्या करेंगे और क्या क्या वो नहीं था उनके पास। आपको पता है 20 साल बाद दोबारा उस स्टडी को कंटिन्यू किया गया और ये पाया गया कि जो वो 3 लोग थे जिनके गोल्स रिटर्न में थे और वो डिक्लेयर कर चुके थे और वो दिन रात उन गोल्स को देखा करते थे, they were 10 times richer than the people who were having goals in their mind. And those people who were having goals in their mind, they were 10 times richer than people who didn't have any goals. And it was a study conducted in Oxford. ये रिजल्ट निकला था उसका। अब आप मुझे बताओ कि आप क्या करने वाले हो? यार मैं तो देखो माइंडसेट के ऊपर ज़्यादा बात करनी थी तो मैं कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है? आप लोगों को अगर कंटेंट होने वाला चाहिए तो फिर मैं दोबारा तो आप लोग मुझे बताओ कि यार इस आइडिया से कितने लोग एग्री करते हैं कि हमें कम से कम, अगर आज बोला जा रहा है तो हम कम से कम अपने ऐसे 10 गोल्स बनाएं अपने और अपने पेरेंट्स के और अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके लिए हम क्या करना चाहते हैं। यार देखो हमारी एज बढ़ रही है ना, तो हमारे पेरेंट्स की एज और बढ़ रही है यार, समझना पड़ेगा। उनको कब घुमाओगे भाई फॉरेन ट्रैवल? उनको भी तो घूमने की इच्छा है। वो भी तो कह रहे हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी देखना घुमाएगी, वो तो कह नहीं रहे, तो सोच तो रहे हैं यार, अंदर से तो सोच रहे हैं ना वो कब इंडिपेंडेंट बनेंगे, ठीक है? कब उनका अपना घर होगा, वो तो ये सोच रहे हैं। आप चाहे किसी भी मीन्स से वो अचीव करो, आप चाहे जॉब करो, आप चाहे बिजनेस करो, लेकिन आपके पास अगर गोल है ना
तो वो गोल्स तक पहुंच जाओगे आप, ये पक्का है। मैनिफेस्टेशन का इतनी पावर है, आपको पता नहीं जर्नी क्या है, बिकॉज योर वाई इज क्लियर। यू नो, आप जो ये मैनिफेस्ट करते हो ना, ये आपको अपने वाई के करीब लेके जाते हैं, हाउ और व्हाट के करीब लेके जाते हैं। वो तो बहुत लंबी कहानी है, वो तो जर्नी है ना, हाउ और व्हाट, वो मुझे क्या पता। और जब मैं ये बोल रहा था, अपने स्टोरी से दोबारा रिलेट कर रहा हूँ, जब मैं ये बोल रहा था कि मेरे पास ये सब कुछ होगा, तो क्या मुझे पता था कि ये कैसे होगा? आप बताओ, क्या लगता है आपको? मुझे पता था उस टाइम पे जब मैं ये बोल रहा था कि ये सब होगा, बट इट टेक्स करेज। क्योंकि पता क्या है, बहुत सारे लोगों की हवा तो यही निकल जाती है यार, पब्लिकली कैसे बताऊं? ये प्रॉब्लम है एक्चुअली आज सोसाइटी में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये पब्लिकली कैसे डिक्लेयर करूं? एक बार हो जाएगा ना फिर बताऊंगा। अरे यार बताएगा नहीं तो होगा कैसे? एक्चुअली मैं बताएगा ही नहीं तो होगा कैसे? ये इशू है। How many of you have the courage of declaring your goals publicly, talking about them? कितने लोगों के अंदर करेज है पब्लिकली? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये यार सिर्फ ये सेशन सुनने के बाद ऐसा तो नहीं है कि ये आज आर्मी फॉक्स वीडियो हो जाता है, राइट? और जो शाहरुख खान की वो स्टेटमेंट से सुनी हुई है आपने, आप जब शिद्दत से किसी भी चीज को, किसी भी तो पूरी कायनात वो हर कोशिश करेगी कि आपको मेरे को चाहिए दे दे, वही दे देगा। सो नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर हम अपने इस वेंचर को 100 करोड़ पे लेके जाने वाले हैं, और आई वांट पीपल हु वांट सक्सेस इन दिस डोमेन। मेरे को लोग चाहिए, ठीक है? और वो सारे लोग, ये बात पक्की है कि अगर वो होंगे इसके अंदर पूरी वो स्ट्रगल, डिग्रेड, ग्रेटिफिकेशन, वो सारा कुछ करेंगे, तो वो सब लोग मिनिमम 15-20 लाख रुपए महीने पे होंगे, ये भी डिक्लेयर कर रहा हूं। ऐसे 100 लोग कैलकुलेशन के हिसाब से होने के बाद हम लोग 100 करोड़ के बिजनेस में पहुंच जाएंगे, राइट? ये मेरा एक, अच्छा कैसे अचीव करूंगा, रोड मैप क्या है, वो सारी चीजें पेन एंड पेपर पे हैं, लेकिन ये गोल है, ठीक है? ये मैनिफेस्टेशन है। आप बताओ एक कोई ऐसा बिजनेस जो आप आइसोलेशन में रन कर पाओ, कोई भी। यू ऑलवेज हैव टू क्रिएट अ टीम, ऑलवेज हैव टू क्रिएट अ टीम। वो टीम जो डेडिकेटेड हो, किसको लेके? आपके ड्रीम्स को नहीं, अपने ड्रीम्स को लेके। वो टीम जिनके गोल्स आप बैठ के उनके साथ बनाओ, वो टीम। यूजुअली क्या होता है, देखो जॉब्स में आपको बताता हूं क्या होता है, मेरे साथ तो यही होता था। जॉब में क्या होता था कि एक कोई आपका मैनेजर होता था, टू whom you are reporting to, राइट? वो मैनेजर सुबह शाम आपको टारगेट्स देता था, या आपके साथ ऐसा होगा, और आप वो टारगेट फुलफिल करके उसको देते थे, लेकिन इवेंचुअली वो टारगेट होता था कंपनी का। कभी आपके मैनेजर ने ये नहीं कहा कि आओ बेटा इधर बैठो, आप बताओ आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। और मैं आज जो काम कर रहा हूँ ये दूसरे वेंचर में, मैं ये कर रहा हूँ, आज लोगों के गोल्स उनके सामने लिखवाता हूँ और उनके साथ हैंड होल्डिंग करके उनको आगे पूरी करता। इन शॉर्ट जॉब वालों की जॉब छुड़वाता हूँ और कॉलेज वाले बच्चों को जॉब नहीं दिलवाता हूँ। सॉरी मैं अगर कुछ मैं बार इससे सॉरी मांग रहा हूँ, वो मांगना जरूरी है। एक बार ऐसी कोई चीज़ हो जो हमें कभी और वो यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं तो प्लीज़ आई अपॉलोजाइज। कितने लोग ऐसे हैं यार जो इस फिगर को अचीव करना चाहते हो कौन सा फिगर? लाइफ के अंदर?
देखो फिगर ही भूल गए यार, 100 करोड़ तो टर्नओवर का टारगेट है। हाँ बताओ, वेरी नाइस। और अरे यार मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो इसको आगे कैसे करेंगे? ठीक है, take a note of this and reach out on the area if you want to succeed in your life, and we can brainstorm on that. But for that, I would like you to do whatever it takes. If I want you to declare in public your goals, you have to do it. If I am able to generate 20% of it, I share 12% in अरे 20 लाख महीने में बोला मैंने, उसकी कोई जॉब होती है सर? 20 लाख रुपए की कोई जॉब होती है महीने की? आपके सर से पूछ रहा था मैं, 20 लाख रुपए की मैंने तो कोई जॉब की नहीं अभी इंडिया में। तो 23 लाख रुपए महीने की जॉब है। We are into forex trading and crypto, right? We help our investors to earn 10 to 15% of their revenue, whatever they have invested, in a month through AI and machine learning. For the past, मेरे से सीखना है, मेरे से काम करना है, मेरे साथ और करना है ये काम, तो यू आर ओपन, राइट? ये बिजनेस है मेरा, राइट? ये मेरा बिजनेस है और आई वॉन्ट पीपल टू हैव करेज टू स्पीक अबाउट देयर गोल्स एंड डिक्लेयर देम पब्लिकली एंड हैव दिस काइंड ऑफ गोल। एटलीस्ट वो 10 से 15 लाख का महीना दे रहे हैं, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो साल में 10 से 15 लाख रुपए। अगर कोई इंटर करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने का चाहते हैं, इन्वेस्ट भी करना है, सीखना भी है, और ये जो मैंने क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि पब्लिकली अपने गोल को डिक्लेयर करना है। अगर ये काम कर सकते हो तो साइज I have 1200 people who are happily getting returns in excess of 5 lakh rupees per month. साल का कौन सी साल का मतलब 12%
सर और मिनिमम सर बस आपके स्पीड के पास 200 people जैसे आपके पास लेकिन फिर 50,000 के बाद वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। As I am doing. यार वो प्लीज हमारी जॉब आपका आइडिया जो 10 से 15 बनाए महीने के इस नंबर पर फोन करके मैं ही बताऊंगा, मेरी सेक्रेटरी नहीं उठाएगी, मैं ही मेरा पर्सनल नंबर ये तो मेरा ऑफिस का कोई काम नहीं उठाएगा। ठीक है, कोई बात और फॉरेक्स You can call this number or email your interest. Right? Better is to email rather than calling. I prefer interacting on email. Right? So email पे आप अपना question लिखिए, interest अपना email में जारी करिए और I get back to you.